Hello students, today we talk about the variation of the function. So here we have a function f of variable x, y and y dash, where x is fixed and y is some continuously differentiable function and its derivative. Okay, now you have to find out the variation if we change yx to yx plus एप्सिलॉन ईटा एक्स. मतलब अगर हम yx में कुछ चेंज कर रहे हैं एप्सिलॉन ईटा एक्स, सो दैट मीन्स yx बिकम सम yx प्लस एप्सिलॉन ईटा एक्स. देन जो ये चेंज किया yx में एप्सिलॉन ईटा एक्स, इस चेंज को हम बोलते हैं वेरिएशन ऑफ y. ओके, व्हेन देयर विल बी अ वेरिएशन इन y, then there will be corresponding variation in f. Okay, so when y is changing to y plus epsilon eta, then f will be changing to f plus delta f. Okay, so f plus delta f will be equal to f of x, y की जगह पे हो गया y plus epsilon eta, and डेरिवेटिव क्या होगा इसका y dash plus epsilon eta dash. Okay, now if we have to find out the what will be the corresponding change in f. Okay, so what will be its corresponding change? You can say that they take the difference of 1 and 2. So what it will be, इनका जब difference लेंगे, what it will be f plus delta f minus f, that will be delta f, and right hand side will be f of x, y plus epsilon eta, y dash plus epsilon eta dash minus f of x, y, y dash. Now you have to take the difference, expand it by using the Taylor theorem. So you know that how to take the expansion. So it will be f of x, y, y dash. You know that how to take the expansion of Taylor. If I am writing down f of x plus h, y plus k. Suppose that if I am writing x plus h, y plus k. So how it will be f of x, y plus h into curl f by curl x, okay, plus k into curl f by curl y plus s square into curl square f over curl x square, and so on. You know that. Okay, so in the same manner we are applying the Taylor expansion over here. So what it will be f of x, y, y dash, x is fixed actually. Okay, so f of x, y, y dash plus epsilon eta dash, this is some h like this, epsilon eta dash f का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में. ओके, एंड दिस इज लाइक के epsilon eta dash y का f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dash. ओके, and some higher order terms will be there. So I am writing down some higher order terms and minus of f of this thing. Okay, now you check that these two terms will be cancel out each other. Then what will be the remaining? This part plus higher order terms. So this part plus some non-linear higher order terms of epsilon. So if we neglect the higher order term, अगर हम इस higher order terms को neglect कर दे, so you will get the principal part. इस higher order terms को neglect करने के बाद we take the principal part of delta f. इस डेल्टा एफ का प्रिंसिपल पार्ट लेंगे और प्रिंसिपल पार्ट को हम किससे डिनोट करते हैं? इस डेल्टा से डिनोट करते हैं. दैट विल बी द डेल्टा ऑफ एफ. ओके, सो दिस विल बी द प्रिंसिपल पार्ट. सो दिस थिंग आई एम राइटिंग हियर, दैट विल बी योर डेल्टा ऑफ एफ, दैट विल बी द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द कैपिटल डेल्टा एफ. ओके, नाउ वी टेक द स्पेशल केसेस. अगर हमारे पास एफ इज वाई ओनली, तो f इक्वल टू वाई, सो वट आई हैव टू टेक, हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा वाई, एप्सिलॉन eta डैश एज इट इज, f तो आपका y है तो कर्ल y और कर्ल y क्या बन जाएगा 1. ओके, एप्सिलॉन eta डैश, और ये बन जाएगा आपका डेरिवेटिव 0. सो दैट पार्ट बिकम्स 0, इट विल बी 1. सो यानी कि डेल्टा y आ गया एप्सिलॉन eta डैश. ओके, नाउ अगर f आपका y डैश है, अगर f y डैश है, देन यू से दैट कर्ल y डैश और कर्ल y, ये आपका बन जाएगा 0, और कर्ल y डैश और कर्ल y डैश ये बन जाएगा 1.
यानी कि डेल्टा ऑफ वाई डैश किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन ईटा डैश के इक्वल। सो डेल्टा ऑफ वाई डैश दैट विल बी एप्सिलॉन ईटा डैश, ओके, एंड डेल्टा ऑफ वाई इज एप्सिलॉन ईटा। तो ये दोनों की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो आपकी फोर्थ इक्वेशन थी। व्हेन यू प्लेस इट ओवर हियर, सो यू से दैट डेल्टा ऑफ एफ विल बी इक्वल टू कर्ल एफ ओवर कर्ल वाई डेल्टा वाई प्लस कर्ल f over कर्ल y dash into delta y dash, okay. So in this way we find out the variation of the function f. Now variation of the sum of the functions you have to find. If you have to find out the variation of the sum of functions, so what it will be, that means you have to find out the delta of f1 plus f2, so that will be equal to delta of f1 plus delta of f2. If you take the proof for that, how to take it, suppose f is a function of x by y dash and f2 is another function of x by y dash, okay. Now f1 plus f2 का हमें वेरिएशन फाइंड आउट करना है, तो आई कॉल f1 plus f2 एज f, उसको मैं f कॉल कर लेता हूँ. सो दैट मीन्स यू विल से दैट द करस्पॉन्डिंग वेरिएशन इन f विल बी इक्वल टू, अगर मैं y को y प्लस एप्सिलॉन ईटा में चेंज करता हूँ और उसमें से f चेंज का डिफरेंस करता हूँ, सो यू विल गेट दैट डेल्टा ऑफ f एक्चुअली, ओके. f प्लस डेल्टा f में से f सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट विल बी द चेंज एक्चुअली. सो डायरेक्ट आई एम राइटिंग डाउन द चेंज. सो व्हाट इट विल बी इसमें y की जगह y प्लस एप्सिलॉन ईटा और y डैश की जगह y डैश प्लस एप्सिलॉन ईटा वो पुट करोगे, माइनस ऑफ ये फंक्शन एज इट इज ये पुट करोगे, तो द सेम थिंग आई एम राइटिंग f1 ऑफ x y प्लस एप्सिलॉन ईटा y डैश प्लस एप्सिलॉन ईटा प्लस f2 ऑफ x y प्लस एप्सिलॉन ईटा y डैश प्लस एप्सिलॉन ईटा एंड माइनस ऑफ f1 माइनस f2, okay. Now again you have to take the expansion by using the Taylor theorem. So इसको एक्सपेंड कर दीजिए सिमिलरली जैसे हमने f4 किया था. इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो दैट विल बी f1 x by y dash प्लस दैट विल बी एप्सिलॉन डैश, दिस इज सम लाइक h, ओके. सो h इंटू कर्ल f1 ओवर कर्ल y प्लस दिस इज लाइक k सम k इंटू कर्ल f1 ओवर कर्ल y डैश प्लस इसकी हाई ऑर्डर टर्म्स होगी, सो हाई ऑर्डर टर्म्स प्लस f2. इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो इसको भी इसी तरीके से एक्सपेंड कर दीजिए, दैट विल बी f2 ऑफ x y एंड y डैश, f2 ऑफ x y y डैश प्लस एप्सिलॉन ईटा इनटू कर्ल f2 ओवर कर्ल y प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश कर्ल f2 ओवर कर्ल y डैश प्लस हाई ऑर्डर टर्म्स एंड माइनस में f1 माइनस f2 माइनस f2 हम एज इट इज लिखेंगे, ओके. सो दिस टर्म्स वी गोट, बट व्हेन यू गोट दिस यू कैन चेक दैट कि f1 and plus f2 और ये minus f1 minus f2 both will be cancelled out. So what will be there? This thing and this thing will be remaining plus higher order terms, okay. ये सारी higher order terms को हमने लास्ट में लिख दिया है. If we neglect the higher order terms, so you can check that अगर मैं higher order terms को neglect करता हूँ, so इसका जो principal part होगा this is the ये f1 का principal part हो गया, okay. So you say I mean the दैट विल बी द वेरिएशन ऑफ f1 हो गया आपका ये. अगर हम इसका प्रिंसिपल पार्ट देखते हैं तो दिस इज द प्रिंसिपल पार्ट एक्चुअली. सो दैट इज द वेरिएशन ऑफ f1 और ये आपकी वेरिएशन बन रही है वेरिएशन ऑफ f2. जैसे हमने वेरिएशन ऑफ f के बारे में अभी पीछे ऊपर बात की है, सिमिलरली उसका यूज करते हुए हम इसे लिख सकते हैं दिस इज द वेरिएशन ऑफ f1 दैट मीन डेल्टा ऑफ f1 एंड इसको लिख सकते हैं हम वेरिएशन ऑफ f2 दैट मीन डेल्टा ऑफ f2. और ये पूरा क्या है, ये प्रिंसिपल पार्ट है. किसका प्रिंसिपल पार्ट है, इस डेल्टा एफ का प्रिंसिपल पार्ट है. तो डेल्टा एफ का प्रिंसिपल पार्ट को हम किससे लिखेंगे, इस डेल्टा ऑफ एफ से लिखेंगे, ओके. सो यू कैन चेक दैट डेल्टा ऑफ एफ विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ f1 प्लस डेल्टा ऑफ f2. सो दिस थिंग वी आर गेटिंग हियर, राइट. सो इन दिस वे यू विल गेट. सिमिलरली यू हैव टू show that the variation of product of the function f1 into f2 that will be the delta of f1 into f2 plus f1 into delta of f2, okay. this thing we have to show. तो जो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है इसको मैं f कॉल कर देता हूँ तो f विल बी इक्वल टू f1 into f2. सो दैट विल बी देयर. अगर हम करस्पॉन्डिंग वेरिएशन चेंज करते लेते हैं y में, सो देयर विल बी द करस्पॉन्डिंग चेंज इन f. व्हाट विल बी, दैट विल बी द डेल्टा f. सो यू फाइंड आउट द चेंज इन f विच विल बी डेल्टा ऑफ f. तो डेल्टा ऑफ f आपका क्या होगा, f1 ऑफ x y प्लस एप्सिलॉन ईटा y डैश प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश इंटू f2 ऑफ x इंटू y प्लस एप्सिलॉन ईटा y डैश प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश माइनस f1 इंटू f2.
Okay, this thing will be there. Similarly, now you use again the Taylor theorem. When you apply the Taylor theorem, this will be this into this and minus of this into this. Okay, so जब इसका टेलर थ्योरम का एक्सपेंशन करोगे तो ये आपका हो गया f1 ऑफ एक्स वाई वाई डैश प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश कल f1 होल का वाई प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन ईटा है, एप्सिलॉन ईटा डैश कल f1 ओवर कल वाई डैश. सिमिलरली सेकंड को जब ओपन करेगी तो f2 ऑफ एक्स वाई वाई डैश प्लस एप्सिलॉन ईटा कल f2 ओवर कल वाई प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश कल f2 ओवर कल वाई डैश plus some higher order terms. So I write down in the last higher order terms of epsilon and minus of f1 into f2, it's here. So जो ये दोनों bracket है, just you product to each other. When you take the product of them, so you will get this thing. Okay. So product लेने के बाद आपके पास ये terms आ जाएगी. और जो higher order terms है, higher order terms इनमें जो product करने के बाद higher order terms बनेगी epsilon square and so on. So ये higher order terms हमने last में इस bracket में लिखे हैं अभी. हायर ऑर्डर टर्म्स और माइनस आपका क्या था, ये माइनस ऑफ एफ वन इंटू एफ टू, ये लिख दिया माइनस ऑफ एफ वन इंटू एफ टू. सो व्हेन यू चेक दैट यहाँ पे प्लस का एफ वन इंटू एफ टू है और ये माइनस का एफ वन इंटू एफ टू है, सो दिस विल बी कैंसिल आउट. ओके, सो व्हेन यू टेक द कैंसिल आउट ईच अदर, सो यू से दैट रिमेनिंग टर्म्स आपके पास बच गई एप्सिलॉन ईटा कल एफ टू और कल वाई इंटू एफ वन प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश एफ कल एफ टू और कल वाई डैश इंटू एफ वन प्लस like this plus some higher order terms. But here and here you can check that कि f1 आपका कॉमन है तो f1 is taken common, एप्सिलॉन ईटा डैश कल f2 ओवर कल y प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश कल f2 ओवर कल y डैश, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन ईटा है. ओके, सो सिमिलरली इन द थर्ड एंड द फोर्थ टर्म यू कैन चेक दैट कि f2 if you take common that will be एप्सिलॉन ईटा कल f1 ओवर कल y प्लस एप्सिलॉन ईटा डैश कल f1 ओवर कल y डैश. Okay, so now again using the same definition as we have discussed before, what is this, you can check that will be the principal part of the delta f. ये पूरा का पूरा क्या बन गया, प्रिंसिपल पार्ट बन गया डेल्टा f का, लेकिन उसे हम लिखेंगे कैसे, यू से दैट डेल्टा ऑफ f विल बी इक्वल टू दिस थिंग. लेकिन इन दोनों में तो f1 मेरा कॉमन था तो f1 कॉमन लिया, दैट विल बी द रिमेनिंग पार्ट, और यहाँ से f2 कॉमन है इन दोनों में तो इनसे f2 कॉमन लिया, दैट विल बी द रिमेनिंग पार्ट. बट द रिमेनिंग पार्ट जिसे मैंने सर्कल किया, यू कैन चेक दैट व्हाट इज दिस वन, that is the variation of f2 which is write it as delta of f2. Okay, so ये f1 common into delta of f2 and plus f2 common delta of f1. So variation of the product of function will be like this. Okay, similarly you do the variation of the product of the function. Okay, so product of the function will be given in the same manner, right? Like similarly for the variation of the division of the function, quotient of the function will be given by delta of f1 over f2 will be given by f2 into delta f1 minus f1 into delta f2 divided by f2 square. So division of the function you call it as f, and similarly in the same manner you have to move. जब हमने किया corresponding the variation, जब हम एप्सिलॉन ईटा वेरिएशन ले रहे हैं y में तो corresponding वेरिएशन जो चेंज होगा हमारा f में, दैट विल बी डेल्टा ऑफ f. डेल्टा ऑफ f क्या होगा, y की जगह y प्लस एप्सिलॉन ईटा जब मैं इसमें चेंज करूँगा एंड उसमें से डिफरेंस लोगा क्वेश्चन का, सो दैट विल बी द डेल्टा f. ओके, दिस माइनस दिस, दैट विल बी डेल्टा f. सो व्हेन यू टेक द डिफरेंस यू जस्ट टेक द क्वोशिएंट, दोनों तरफ एलसीएम लीजिए एंड यू सोल्व दैट. व्हेन यू सोल्व इट f1 into f2 minus f1 into f2 of this one and the product that will be the LCM. So again you use the Taylor expansion. When you use the Taylor expansion for the numerator and the denominator also you can write, that will be f1 of plus epsilon eta cos f1 cos y plus epsilon eta dash cos f1 cos y dash into f2 minus this is f1, this is the actually the same f1 and f2. Okay, so don't get confused with where is someone is capital F1 और capital F2. So ये थोड़ी राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, बट इट इज एवरीवेयर देयर इज स्मॉल f1 and small f2. Then f1 of x y y dash into f2 of x y y dash plus epsilon eta cos f2 over cos y plus epsilon eta dash cos f2 over cos y dash plus higher order terms. Similarly in the denominator you write down the same thing, okay, into f2 plus higher order terms. So again what you have to do,
just you take the product. When you take the product for the numerator also, that will be terms this one, जब F2 से प्रोडक्ट लोगे, जब फिर इस टर्म की हम इससे प्रोडक्ट लेंगे, जब प्रोडक्ट लेंगे तो F1 से 3 terms will be there, plus some higher terms will be there. Okay, in the denominator also when you write down here, so you write down F2 into this plus this plus higher order terms. Okay, so in numerator and denominator, by removing the higher order terms, you have to just considering the principal part. So for the numerator principal part, you are taking this one. Okay, and for the denominator you take the first term, that will be the principal part. Okay, so that will be the principal part. So by using these terms we are getting, शुरू की जो दो टर्म्स है उसमें से F2 कॉमन है, F2 व्हेन यू टेक कॉमन दैट विल बी द रिमेनिंग पार्ट, माइनस F1 कॉमन दैट विल बी द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज हायर ऑर्डर टर्म्स. सो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से व्हेन यू टेक द प्रिंसिपल पार्ट, सो यू विल टेक दैट दिस थिंग डिवाइड बाय दिस थिंग. सो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज F2 और ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ F1 एंड माइनस F1 और ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ F2 एंड डिवाइड बाय F2 स्क्वायर. So after neglecting the higher order terms, you will get this thing. Okay, और ये चीज़ क्या है, प्रिंसिपल पार्ट ऑफ डेल्टा एफ. प्रिंसिपल पार्ट ऑफ डेल्टा एफ को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल डेल्टा एफ का प्रिंसिपल पार्ट है उसे लिखेंगे स्मॉल डेल्टा ऑफ एफ से. ओके, सो दैट इज एक्चुअली द डेल्टा ऑफ एफ. सो दैट मीन्स यू गॉट दिस वन. ओके, सो इन द सेम वे, okay, now there is some, if x is an independent variable then the operator delta and delta d by dx are commutative. So हम ये ऑपरेटर पहले यूज कर चुके हैं, बट दिस इज कम्यूटेटिव एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ द वेरिएशन. यू कैन चेक दैट हाउ दे आर कम्यूटेटिव. सो d by dx of delta y, d by dx of delta y will be equal to delta of d by dx of y. Okay, this thing you have to solve. सो अभी हमें पता है कि जब हमने y को y प्लस एप्सिलॉन में चेंज किया था तो हमारे पास डेल्टा y किसके इक्वल आया था, एप्सिलॉन ईटा के इक्वल आया था, और डेल्टा y डैश एप्सिलॉन ईटा डैश के इक्वल आया था, जो अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था जब हम f को y सपोज कर रहे थे और y डैश सपोज कर रहे थे. ओके, तो डेल्टा y आपका एप्सिलॉन ईटा आया था और डेल्टा y डैश एप्सिलॉन ईटा डैश. तो हमें प्रूफ करना है ये टर्म, तो पहले LHS लेके चलते हैं. जब इसका हम LHS लेंगे, सो व्हाट इट विल बी, यू कैन चेक दैट कि डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा वाई किसके इक्वल है, ये है एप्सिलॉन ईटा के इक्वल, तो इसकी जगह एप्सिलॉन ईटा लिख दिया. एप्सिलॉन कॉमन है तो डी बाई डी एक्स ऑफ ईटा हो गया वाई ईटा डैश, तो एप्सिलॉन ईटा डैश आ गया. ओके, अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड ये है डेल्टा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई. ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का मीनिंग क्या है, वाई डैश, और वाई डैश किसके इक्वल है आपका, सॉरी डेल्टा ऑफ वाई डैश किसके इक्वल है, दिस इज डेल्टा ऑफ वाई डैश. डेल्टा ऑफ वाई डैश किसके इक्वल है, एप्सिलॉन ईटा डैश के इक्वल, तो ये आ गया एप्सिलॉन ईटा डैश. तो यानी कि दोनों के दोनों RHS सेम है आपके. इफ दिस टू आर सेम RHS, सो दैट मीन्स दिस LHS विल आल्सो बी सेम. ओके, तो लेफ्ट साइड भी इनकी इक्वल होगी. अगर इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है, सो यू से दैट डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई. ओके, सो दैट मीन्स डेल्टा एंड डी बाई डी एक्स आर कम्यूटेटिव. नाउ there is some example, if there is, sorry, so what is example, if f is 1 plus x plus y dash square, you have to calculate for x equal to 0. x equal to 0 के लिए आपने कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, डी एफ और डेल्टा एफ. एक्चुअली दीज आर द डिफरेंट वन. तो यहाँ से पता चल जाएगा कि इससे कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, कि डी एफ फाइंड आउट करना है कब, जब आपका y क्या है साइन x एंड डी एक्स क्या है आपका एप्सिलॉन, तब हमें डी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एफ आपका ये गिवन है. ओके, डी एफ की वैल्यू निकालो फॉर एक्स इक्वल टू 0 के लिए. जो जो वैल्यू गिवन है, आई एम राइटिंग डाउन दिस थिंग. सो व्हेन यू राइट दिस थिंग, यू कैन चेक ये एफ की वैल्यू गिवन है, यू राइट डाउन दिस थिंग, एंड वाई की वैल्यू है साइन एक्स, यू राइट डाउन दिस थिंग. एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वाई डैश. सो हमें क्या निकालना है, डी एफ. So if I take the derivative of f, so what it will be is, first of all you have to apply the chain rule and the partial derivatives will be there. f का derivative partially with respect to x into dx, f का derivative with respect to partial y into dy plus curl f over curl y dash into dy dash. Okay, now you can check that
कि एफ आपका ये गिवन है, यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, कर्ल एफ ओवर कर्ल एक्स क्या आ जाएगा आपका 1, कर्ल एफ ओवर कर्ल वाई क्या आ जाएगा दैट विल आल्सो बी 1, एंड कर्ल एफ ओवर कर्ल वाई डैश क्या आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 वाई डैश। ओके, ये आपका डी एक्स डी वाई और डी वाई डैश एज इट इज रख दिया हमने। ठीक है, सो डी एफ किसके इक्वल आ गया आपका, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस 2 वाई डैश इंटू डी वाई डैश। अब हमें टर्म्स यूज करनी है, y की वैल्यू आपको देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में गिवन है y sin x है, और dx किसके इक्वल है एप्सिलॉन के इक्वल। तो dx की जगह पहले हम रख लेते हैं एप्सिलॉन, तो dx तो हमने रख दिया एप्सिलॉन, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए इस dy की और dy डैश की चाहिए। तो लेकिन y क्या था हमें गिवन, y हमें पता है कि y हमें गिवन था sin x। अगर y sin x है तो dy क्या आएगा, दोनों डेरिवेटिव ले लीजिए, डी ऑफ वाई विल बी इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos x इंटू डी एक्स, सो डी वाई विल बी इक्वल टू cos x इंटू डी एक्स। लेकिन डी एक्स हमारा क्या है एप्सिलॉन है, तो ये क्या बन गया राइट हैंड साइड में एप्सिलॉन इंटू cos x, यानी कि डी वाई की वैल्यू आ गया एप्सिलॉन इंटू cos x, ये भी आ गया एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन cos x आ गया। अब ये टर्म रहती है आपकी। ओके, तो थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे 2 वाई डैश इंटू डी वाई डैश की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लो वाई डैश हमें क्या गिवन है, वाई डैश, तो वाई हमें गिवन है साइन एक्स, तो अगर मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव करता हूँ तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या आ जाएगा कोस एक्स, तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स आ गया कोस एक्स। तो ये तो बन गया आपका 2 कोस एक्स यहाँ पर। अब हमें चाहिए डी वाई डैश, तो डी वाई डैश कैसे आएगा, यू जस्ट टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने इसे का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ वाई डैश दैट विल बी माइनस साइन एक्स, राइट हियर यू कैन चेक। Now dx multiply to the right hand side, you will get this thing, dy dash will be equal to minus sin x into dx, लेकिन dx क्या है आपका एप्सिलॉन, सो इट विल बी माइनस एप्सिलॉन इंटू साइन एक्स। तो यहाँ dy dash की वैल्यू आ जाएगी माइनस एप्सिलॉन इंटू साइन एक्स, और 2y dash की वैल्यू आपको पहले ही पता थी 2 इंटू cos x। ओके, सो यू जस्ट राइट ऑल दिस वैल्यूज ओवर हियर, ये वैल्यू हमने उठा के सारी पुट कर दी है, और ये वैल्यू बन गई आपकी ये df। ओके, सो df विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन cos x minus 2 cos x into epsilon sin x, this thing will be there. Okay, now you have to find this value when x equal to 0, x equal to 0 के लिए वैल्यू निकालो। जब x equal to 0 पुट करोगे तो cos 0 क्या बन गया, ये एप्सिलॉन ऐसे ऐसे एप्सिलॉन इंटू cos 0 1 होता है, तो ये एप्सिलॉन आ गया माइनस 2 एप्सिलॉन cos 0 इंटू साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0, तो दिस ओल टर्म विल बी 0, तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन क्या आ गया 2 एप्सिलॉन। ओके, तो यानी कि डी एफ की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर आपकी क्या आ गई 2 एप्सिलॉन। You got? Now you have to solve the second part. So what is given in the second part? Delta of f you have to find. f आपको सेम गिवन है जो ऊपर था आपका 1 प्लस एक्स प्लस वाई डैश का, x पे वैल्यू निकालने है उसकी x इक्वल टू 0 पर, किसकी एफ की वैल्यू निकालनी है डेल्टा f की, लेकिन y मुझे साइन x गिवन है और डेल्टा y गिवन है एप्सिलॉन इंटू एक्स प्लस 1। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन आपको पता है जब वेरिएशन निकालते हैं तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फिक्स लेकर चलते हैं। तो सिमिलरली हियर f आपका क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वाई डैश, हम डेल्टा ऑफ एफ निकाल रहे हैं, वेरिएशन ऑफ एफ क्या होगा हमारा x इज फिक्स, सो डेल्टा ऑफ x विल बी इक्वल टू 0, सो फर्स्ट टर्म नो नीड टू राइट। वैसे तो ये टर्म यहाँ पर ये भी आना था ना, कर्ल एफ ओवर कर्ल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ओके, लेकिन x फिक्स है तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 0, सो नो नीड टू राइट दिस टर्म। ओके, सो हमने दो टर्म लिखी, कर्ल एफ ओवर कर्ल वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस कर्ल एफ ओवर कर्ल वाई डैश इंटू डेल्टा वाई डैश। ओके, सो वी राइट दिस थिंग। अब हमें इन टर्म्स की वैल्यू पुट करनी है, सो हाउ टू जस्ट प्लेस दिस वैल्यू, कर्ल एफ ओवर कर्ल वाई, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए और y डैश के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए, तो इन दोनों के डेरिवेटिव निकाल के ये वैल्यू हमें पुट करनी है। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आपका 1 आया था, ओके, एंड जो आपका वो y डैश के रिस्पेक्ट में आया था 2y डैश, तो ये वैल्यू तो आपका है 1 और ये है 2y डैश, राइट। अब हमें डेल्टा y और डेल्टा y डैश चाहिए, डेल्टा y भी हमें गिवन है एप्सिलॉन इंटू एक्स प्लस 1, तो ये देखो डेल्टा y की वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख चुके हैं एप्सिलॉन इंटू एक्स प्लस 1। ओके, अब हमें क्या चाहिए डेल्टा ऑफ वाई डैश यू नीड, ये टर्म भी चाहिए आपको डेल्टा ऑफ वाई डैश। सो यू नो दैट अभी हमने ऊपर की तरफ किया है कि डेल्टा ऑफ एक सोल्व किया है ना, हमने प्रूफ किया है कि डेल्टा और डी बाई डी एक्स वो क्या है कम्यूटेटिव है, तो डेल्टा ऑफ डी बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई डैश चाहिए ना हमें, तो उसके लिए हमें ये चीज़ गिनेंगे डेल्टा ऑफ वाई डैश विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा वाई, लेकिन डेल्टा वाई हमें क्या है एप्सिलॉन इंटू एक्स प्लस 1, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा केवल एप्सिलॉन, तो कहने का मीनिंग है उसकी वैल्यू आपको पता चल गई क्या होगी
एप्सिलॉन। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी हमें पता चल गई, ये आ गया आपके पास एप्सिलॉन और ये गिवन है एप्सिलॉन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, और ये 1 था, ये 2y डैश, तो ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, ये वैल्यू पुट कर दिया 1 इंटू एप्सिलॉन एक्स प्लस वन प्लस 2y डैश इंटू इसकी वैल्यू क्या है एप्सिलॉन। लेकिन 2y डैश चाहिए हमें, y हमें गिवन है, y हमें क्या गिवन है साइन एक्स, तो इसका y डैश निकालेंगे तो क्या आएगा आपका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी कोस एक्स, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका 2 कोस एक्स, तो 2 एप्सिलॉन इंटू कोस एक्स, सो इट विल बी देयर। लेकिन हमें डेल्टा ऑफ एफ की वैल्यू निकालनी है फॉर एक्स इक्वल टू 0, सो व्हेन यू प्लेस एक्स इक्वल टू 0 यू विल गेट दैट कि इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 एप्सिलॉन। ओके, सो इन दिस वे you will get the value of the df and the delta f. Okay, so next topic we will discuss in the next class. Thank you very much students.